This session present model MCQ for D Pharmacy students, subject pharmaceutical jurisprudence. Now this is session 4 on the basis of different things which are involved in the pharmaceutical jurisprudence, and on the basis of that different questions will ask in this session 4. So we will look out the what kind of different question will be asked in MSBT exam 2024 D Pharmacy second year students in the subject of pharmaceutical jurisprudence. Now we will discuss question number first. List of minimum equipment for the efficient to running of a pharmacy under which schedule ऑफ DNC एक्ट। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी लिस्ट है मिनिमम इक्विपमेंट की वो किस शेड्यूल में लिस्ट आउट की गई है DNC एक्ट 1940 एक्ट में। सो हियर इज सम ऑप्शन इज दैट A schedule Y, B schedule A, C schedule N and D schedule K. So the correct answer is that ऑप्शन सी शेड्यूल एन। जी हाँ, शेड्यूल एन में जो भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स है जो कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए लगते हैं, राइट, एनी काइंड ऑफ फार्मेसी एजुकेशन प्रोवाइड करना हो तो उसमें बहुत सारे जो इक्विपमेंट लगते हैं वो लिस्ट आउट किए हैं शेड्यूल एन में DNC एक्ट 1940। सो इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डिफरेंट शेड्यूल क्या है, राइट। DNC एक्ट में उसका स्टडी होना चाहिए, वो मगअप होने चाहिए। ऑन दैट बेसिस यू कैन giving the particular answer for the particular questions on the basis of these different schedules in the DNC Act 1940. So now we will look out the question number second. List of substances required to be taken only under supervision of registered medical practitioner, that is RMP, under which schedule of the DNC Act 1940. जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सुपरवाइज करता है सब्सटेंसेस उनकी लिस्ट किस शेड्यूल में लिस्ट आउट की है DNC एक्ट 1940 कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं A शेड्यूल G, B शेड्यूल X, C शेड्यूल N and D शेड्यूल M. So correct answer is that schedule G. Now we will discuss question number 3. Which schedule of DNC Act contain the list of psychotropic substances? आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं उनकी लिस्ट है वो कहाँ पे किस शेड्यूल में आती है, लिस्ट आउट की गई है ऑफ द DNC एक्ट 1940। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं A शेड्यूल X, B शेड्यूल R, C शेड्यूल S एंड D शेड्यूल U. सो करेक्ट आंसर इज दैट शेड्यूल X। जी हाँ, शेड्यूल X में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट फॉर्मिंग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट मिलेंगी। अगर आपको याद है, मगअप किया है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑप्शन द्वारा भी आप सही जवाब जो ढूंढ सकते हैं। जैसे कि if you know the different options information that is like B option like schedule R, अगर आपको पता है शेड्यूल R में किसकी लिस्ट है लाइक और क्या कंटेंट है, या शेड्यूल S में क्या है, शेड्यूल U में क्या है, तो आसानी से आप आंसर ढूंढ सकते हो। दैट इज शेड्यूल X. सो शेड्यूल R रिलेटेड अबाउट द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टैंडर्ड्स दिए उनमें। Then schedule S relate for the standards of cosmetics, and schedule U represent the manufacturing, raw material and analytical records of the drug. So these are the different information and content which are included in different schedule. So on the basis of that we can sort out our answer, that is option A schedule X is the right answer for this question number 3. Now we will discuss question number 4, that is which schedule of DNC Act 1940 related to list of biological and special products, right? So जो biological and special products है उसके related जो भी list है वो DNC Act 1940 के किस schedule में मौजूद है या present है। So these are the following options: A schedule E, B schedule G, C schedule H and D schedule C. So जी हाँ, शेड्यूल C में ये जो लिस्ट है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स की वो प्रेजेंट है DNC एक्ट में। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन D शेड्यूल C. Now we will discuss the question number 5. In which schedule of DNC Act 1940 contain requirements and guidelines on clinical trials for import and manufacture of new drugs? जी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, गाइडलाइंस हैं ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। सो ये जो रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस है ये कौन से शेड्यूल में दी है DNC एक्ट 1940 के। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है A शेड्यूल Y, B शेड्यूल V, C शेड्यूल U, D शेड्यूल Z. सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन A शेड्यूल Y. जी हाँ, शेड्यूल Y इज रिलेटेड अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स। उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस दिए नियर रिलेटेड अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में कि शेड्यूल Z दिया है।
सो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी शेड्यूल नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई की होंगी आपने या मगअप किया होगा डिफरेंट शेड्यूल, तो शेड्यूल जेड नाम का कौन सा भी शेड्यूल अपने यहाँ पे नहीं। अप टू द वाई अपने पास जो लिस्ट आउट है शेड्यूल की DNC एक्ट में 1940 में, वो सिर्फ वाई तक है। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ शेड्यूल लाइक जेड विल बी देयर। सो यहाँ पे जम्बलिंग करने के लिए आपके लिए शेड्यूल जेड है। Now we will discuss question number 6, that is Schedule W of DNC Act 1940 containing which type of list। जी हाँ, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि शेड्यूल डब्ल्यू में किस टाइप की लिस्ट है, राइट। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए लाइफ पीरियड यानी कि एक्सपायरी ऑफ ड्रग्स, बी ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ स्पेशल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, एंड डी स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। सो here are the different type of question asked in this session। सो यहाँ पे अलग तरह से कैसे सवाल पूछा गया है, आपने देखा है कि यहाँ पे अभी शेड्यूल का नाम दिया है और उसके ऊपर उसमें कौन सी लिस्ट है ये आपने को चूज़ करना है, सॉर्ट आउट करना है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन देखिए उसमें डायरेक्टली लिस्ट कंटेंट दिया था एंड ऑप्शन में हमें डिफरेंट शेड्यूल दिए थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे पहले शेड्यूल पूछा गया है, उसके बाद में उसका कंटेंट पूछा गया है। सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट बी ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, राइट, ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम। सो दिस आर द थिंग्स विच इज़ लिस्ट आउट इन द शेड्यूल डब्ल्यू। अगर बाकी का ख्याल किया जाए या डिस्कस किया जाए तो ऑप्शन ए जो है लाइफ पीरियड, सो पी डिनोटेड बाय द शेड्यूल पी रिलेटेड, राइट, पीरियड जो है वो शेड्यूल पी में है। सी लिस्ट ऑफ स्पेशल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस शेड्यूल सी में है, एंड डी स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स शेड्यूल एस रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। We will discuss next question, that is question number 7, Schedule S of DNC Act 1940 containing which list। ये आपको पूछा गया है कि शेड्यूल एस में किस टाइप की लिस्ट है, राइट। जो भी एक्ट है हमारा DNC एक्ट 1940 उसमें शेड्यूल एस उसमें कौन सी लिस्ट आउट किया गया है, स्टैंडर्ड से या रिक्वायरमेंट से। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं। ए लाइफ पीरियड एक्सपायरी ऑफ ड्रग्स, बी ड्रग मार्केट अंडर जेनेरिक नेम, सी list of special biological substances, and D standards for cosmetics। So our correct answer is that D standards for cosmetics। जी हाँ, शेड्यूल एस में जितने भी कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स है वो इंक्लूड है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है शेड्यूल एस में दिए हुए। सो शेड्यूल एस रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग लाइक इंसुलिन लिस्ट आउट इन विच शेड्यूल ऑफ DNC एक्ट 1940। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जो भी ड्रग है इंसुलिन नाम का वो किस शेड्यूल में लिस्ट आउट किया है DNC एक्ट 1940 में। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, शेड्यूल एच, शेड्यूल एम, शेड्यूल जी, शेड्यूल जी। जी हाँ, ऑप्शन है यहाँ पे A B C D, शेड्यूल एच, शेड्यूल एम, शेड्यूल जी एंड शेड्यूल सी। सो हर एक जो शेड्यूल है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर है शेड्यूल जी, वो रिप्रेजेंट करता है कि the drug will be giving to the under the supervision of medical registered medical practitioner only। जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके सुपरविजन में ये ड्रग देना है। लाइक इंसुलिन जो ड्रग है वो RMP के सुपरविजन में दिया जाता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट सी शेड्यूल जी। सो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल में उसका कंटेंट क्या है, शेड्यूल का नाम क्या है, या उसमें जो एग्जांपल दिए है ड्रग का एग्जांपल दिए है, या कोई जैसे कि शेड्यूल एन में इक्विपमेंट दिए हो, राइट। सो उस अगर नाम दिया जाए या उस ड्रग का नाम दिया जाए वो किस शेड्यूल में आता है, वो किस शेड्यूल का एग्जाम्पल है, राइट, किस शेड्यूल में लिस्ट आउट किया गया है। अगर आपको अगर शेड्यूल याद है, उसका कंटेंट याद है, उसके एग्जांपल याद है, तो आप झट से आंसर दे सकते हैं। नाउ यू विल प्रिपेयर द मोस्ट द थिंग इज दैट शेड्यूल। हियर आई विल शो यू द टेबल इन दैट शेड्यूल नेम A B C D E F G and their contents and there some example. So you will be learn and mug up it and giving the correct answer for the particular questions on the basis of schedule and their contents and example. So if you like my videos, please subscribe it and circulate it maximally। subscribe इसलिए करें ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये सर्कुलेट होना चाहिए। So please guys subscribe it, like it and comment it। Thank you one and all for inspiring me to making this video।